careful now. So in the last lecture we were doing determinants and the problems were based on without expanding the determinant show that. Is it right? And without expanding means expansion is allowed but not directly. In any one column or in any one row at least two elements should be 0. Understand? Whenever RHS is given as 0, it means properties are used 100%. And whenever RHS is not 0, it means you have to convert any one column, any one row, at least two elements should be 0. Like 1 0 0 or 0 1 0 or 0 0 1 like this. So can you tell me the last number? Last number of 9. Confirm है ना? लास्ट क्वेश्चन जरा रेट कीजिए क्या था? और आरएचएस में दिया हुआ था मैंने. सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 10. स्टार्ट हो गया लेक्चर. क्या कर रहे हैं आप? राइट डाउन क्वेश्चन 10. फर्स्ट रो एक्स वाई जेड, सेकेंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, थर्ड वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, RHS x minus y, y minus z, z minus x, another bracket x y plus y z plus z x. लेंथी क्वेश्चन है जनरल 4 और 6 मार्क्स के लिए. LHS x y z x square y square z square y z z x x y. This is determinant going on for standard 12th ISC. Again, is it right? Now as I told you children, you have to convert any one column, any one row, two elements should be 0. This is not so easy over here. For that we have to apply elementary transformations, either row or column. Now see here, if we do like this, C1 minus C2, then we get x minus y, x square minus y square, here also z common. C2 minus C3, y minus z, y square minus z square, this minus this, and then x minus y, y minus z common. And then slightly you will get 1 1 like that. Our target should be any one column, one row, all elements should be equal. ऐसा आना चाहिए. And for that, according to the nature of the question, आपको proceed करना है. ठीक है? यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे हम? C1 को C1 minus C2 और C2 को C2 minus C3. क्योंकि अगर आप ऐड करते हो तो you are not getting the same. That is why you have to go in that way. So we write by C1 is C1 minus C2 and C2 is C2 minus C3. So this will be C1 minus C2, x minus y, x square minus y square, yz minus zx. C2 minus C3, y minus z, y square minus z square. Pretty early children, zx minus xy. And here it is z, z square, xy. What we have done in place of C1, it is C1 minus C2. In place of C2 is C2 minus C3. And now after this, x minus y, a plus b, a minus b, ये देखिए. Z common children, it is y minus x. Y minus z, y plus z, y minus z, x common z minus y. And the last column, no change at all. As you know, for determinant, the common is from any one column, any one row. See here,
x minus y, but here we don't have x minus y, so we have to take minus common. Even though you can take here itself, but I have not taken so that you can understand well. So see here what I am telling, x minus y, x plus y, x minus y, minus common लीजिए, this is x minus y, ये देखिए, y minus z, y plus z, y minus z, minus common it is y minus z, z square xy, taking minus common over here, and now common is possible, children. See here, first column say x minus y common, from second column y minus z column common, from third no common because they are different. This is 1 x plus y minus z, 1 y plus z minus x, z square xy. This is the situation over here, children. What I told you, expansion कब allowed होगा? When any one column, any one row, two elements should be zero. और अभी तक जीरो का कहीं कोई पता नहीं है क्या चिल्ड्रन? जीरो. अगर आप C1 माइनस C2 करें तो एक जीरो हो जाएगा. 1 माइनस 1 क्या हो रहा है? जीरो. तो चलिए बाय ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है. C1 को लिखेंगे C1 माइनस C2. This is x minus y, y minus z. Now see here, C1 को C1 minus C2 करना है. 1 minus 1 0. This is x plus y minus y plus z. This is minus z minus minus plus x. 1 y plus z minus x, z square xy. यहाँ पे y कैंसिल होगा. What is remaining? X minus y, y minus z. 0. चलन ये हो गया x minus z. यहाँ भी देखिए x minus z हो रहा है. इंटरचेंज अगर करते हैं आप, 1 y plus z minus x, z square xy. See here, x minus z. ब्रैकेट ओपन करो, x minus z. 6 मार्क्स क्वेश्चन है ये. RHS में देखिए z minus x आ रहा है. What we are getting over there? और यहाँ पे क्या आ रहा है? x minus z. इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे. When we take minus कॉमन क्या हो जाएगा? z minus x. According to RHS. ये देखिए RHS है यहाँ पे. ये रिमूव कर रहे हैं हम. This is x minus y, y minus z, और ये चिल्ड्रन 0 माइनस कॉमन, z minus x minus common, z minus x. 1 y plus z minus x, z square xy. Be careful. Why we have taken minus common, children? Because हमको z minus x लाना है. ये देखिए आप. So that is why we have taken minus common. और अब यहाँ इस कॉलम से z minus x कॉमन कर लीजिए. x minus y, y minus z, z minus x. This is 0, minus 1, minus 1. 1 y plus z minus x, z square xy. Very lengthy question है ये देखिए. एक जीरो और चाहिए तभी एक्सपेंड कर सकते हैं आप. ठीक है. अब एक जीरो और लाने के लिए नॉट वेरी डिफिकल्ट. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. ये R2 है, R3 है. व्हाट यू विल राइट? R2 को आप क्या लिखोगे? R2 minus R3. पता है ना चिल्ड्रन, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज. R1, R2, R3. So this will be x minus y, y minus z, z minus x. This is 0, 1, z. अब यहाँ देखिए R2 minus R3, minus 1 minus plus 1 0. This is y plus z minus minus plus x, and this is z square minus xy. Third as it is. ये देखिए R2 minus R3. कंप्लीट सेकेंड रो को थर्ड रो में सब्ट्रैक्ट कीजिए.
minus 1 plus 1 that is 0, y plus z minus minus plus x, z square minus xy. और अब आप एक्सपेंड कर दीजिए इसको, x minus y, y minus z, z minus x into minus 1. ये देखिए चिल्ड्रन, 0 into something 0, 0 into something 0 minus 1. और आपको पता है नहीं ये दोनों लाइन कैंसिल हो जाता है, ये देखिए ऐसा, they get cancelled like this. Am I right? What we get here? ये देखिए ऐसा 1 into this, z square minus xy minus this into this, z into y plus z plus x. जिस एलिमेंट को लेंगे उसके सामने के दोनों लाइन क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, रो एंड कॉलम. एंड नाउ वी आर क्लोज टू द रिजल्ट. x minus y, y minus z, z minus x into minus 1, ब्रैकेट ओपन कीजिए, z square minus xy minus yz minus z square minus zx. और ये देखिए आपका z square कैंसिल हो गया. And now the final line of this very lengthy tricky question, x minus y, y minus z, z minus x, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, सब पॉजिटिव हो जाएंगे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स एंड दिस इक्वल टू आर एच एस. फर्स्ट टू राइट आई विल एक्सप्लेन अगेन. दिस वाज द ट्रिकी वन फॉर 6 मार्क्स. -1 है ना, सी हियर, और -1 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो और बिकम्स पॉजिटिव. ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया. इट मींस xy plus yz plus zx which is there on the right side. Complete solution is there on the board. I will explain. थोड़ी सी इसमें डिफिकल्टी आती है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है. और मेन पॉइंट ये है कि एक्सपेंशन इज ओनली अलाउड when any one column, any one row, दो जीरोस आने चाहिए चिल्ड्रन. किसी भी एक कॉलम एक रो में 2 जीरोस आना कंपलसरी है, तभी आप एक्सपेंड कर सकते हो. फिर आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर क्वेश्चन में लिखा हुआ था, टाइटल पिछले लेक्चर में दिया था ना, विदाउट एक्सपेंडिंग. तो फिर विदाउट एक्सपेंडिंग में आपने एक्सपेंड क्यों किया? चिल्ड्रन अगर एक्सपेंड नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन आएगा कहाँ से? सिर्फ विदाउट एक्सपेंडिंग कब होता है? व्हेन RHS becomes 0, because we use properties of determinants. 2 rows are identical, 2 columns are identical, then we get 0. In case of the values on the right hand side, expansion is permissible but not in the beginning. In any one column or one row, at least 2 elements should be 0. Here's the condition. और ये नेचर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से आपको ऑपरेट करना है. ये जो हम लिखते हैं ना, R2 minus R3, C1 minus C2, C2 minus C3, इसको कहते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस. अगर आप R में कर रहे हो तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस. इफ यू आर डूइंग विद C कॉलम, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस. वो लिखा नहीं जाता है, दैट इज फॉर द नॉलेज. दीस आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशंस. अंडरस्टैंड? अभी देखिए यहाँ पे जहाँ तक बोर्ड पे है, पहले हमने क्या किया था, C1 को लिखा था C1 minus C2, C2 minus C3. ये वहाँ से आया था. कहाँ से आया था? C1 की जगह C1 minus C2 और C2 की जगह C2 minus C3. नो प्रॉब्लम. उसके बाद चल रहा ये कॉमन ले लिया, a square minus b square. देन यहाँ पे कॉमन आ गया बाहर. What about the common? I told you in the last lecture you can take common from any column, from any row. या तो किसी कॉलम से कॉमन होगा या रो से कॉमन. उसके बाद पोजीशन ऐसे आ गई, कहीं भी जीरो नहीं है. Therefore we have applied, ये देखिए, this minus this, 1 minus 1 क्या हो गया? 0. तो हमने लिखा C1 को C1 minus C2. ये देखिए, ठीक है. ये होने के बाद वहाँ देखिए आप एक जीरो तो आ गया, एक जीरो और आपको चाहिए. तो ये हमने z minus x क्या कॉमन लेने के लिए, we have taken this common over here. Now if we subtract these two, then again एक जीरो हो रहा है. -1 minus minus plus 1 becomes 0. और 2 zeros आ गया, means expand. 0 into something 0, 0 into something 0. हमने ये लिया, ये दोनों कैंसिल हो जाता है, आपको बताया ना. This one left. और ये expand कैसे होता है? पहले इस डायरेक्शन में, बीच में माइनस, ये डायरेक्शन. That is the way to expand.
जिस एलिमेंट को आप एक्सपेंड करोगे उसके सामने का दोनों भी लाइन मतलब रो और कॉलम क्या होगा, कैंसिल। तो किसी किसी क्वेश्चंस में यू हैव टू वर्क मोर, यू हैव टू लेबर हार्ड, यू हैव टू रिवाइज मोर, देन नो प्रॉब्लम। So I think this was question number 10. Now 11 number, another very important question. More attention required in today's lecture. Keep a star over here. Determinant sign. A minus B minus C. 2B 2C. 2A B minus C minus A 2C. Children space नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूँ 2A 2B C minus A minus B and this equal to A plus B plus C the whole cube. ये क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट कॉलम देखिए, A minus B minus C। सर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, डाल दीजिए बैग में। बैग आपका स्काई बैग बहुत अच्छा है, डालिए उसके अंदर। यस, बाद में सबको सॉरी बोल देना, ठीक है, जितने कॉल वॉल आएंगे ना लेक्चर के बाद। A minus B minus C 2B 2C 2A B minus C minus A 2C 2A 2B C minus A minus B RHS A plus B plus C the whole cube. Very important question. Left hand side LHS से प्रोसीड करेंगे। Then we write LHS. See carefully. The first column A minus B minus C 2B 2C 2A B minus C minus A 2C 2A 2B C minus A minus B. What is our target? Any one column, 2 zeros या any row, वो तो आएगा नहीं फॉर्म। तो any one column all elements equal। दो ऑप्शन आपके पास है, अगर किसी भी कॉलम में आप सभी एलिमेंट्स एक जैसा करते हैं, सेम कर दें, तो क्या होगा, वो कॉमन हो जाएगा। और कॉमन होने के बाद क्या होगा, 1 1 1। और जब 1 1 1 आ जाएगा तो इजीली वी कैन चेंज। मैंने बताया ना, R1 minus R2 R2 minus R3 C1 minus C2 C2 minus C3। यहाँ भी आपको थिंक करना है कि सेम कैसे होगा। देखिए, अगर इन तीनों को हम ऐड कर दें C1 plus C2 plus C3, क्या होने वाला है, this plus this plus this 2 2 4A 5A आ जाएगा। इसको ऐड कीजिए 5B आ जाएगा, इसको ऐड कीजिए 5C आ जाएगा। नहीं आ रहा है, कॉलम से नहीं आ रहा है। इधर देखिए बोर्ड पे, तो रो से चेक कीजिए, ऐसा this plus this से क्या होगा, सेम आ जाएगा। देखिए माइनस बी प्लस 2B प्लस बी आएगा, माइनस C प्लस 2C प्लस C आएगा, यू विल गेट A प्लस B प्लस C। इसको भी ऐड करके देखिए, 2A माइनस A प्लस B माइनस C प्लस 2C प्लस C। इसको चेक कीजिए, 2A माइनस A 2B माइनस B प्लस C सेम आ रहा है। मीन्स आपको क्या करना होगा, R1 को लिखना होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। दैट इज इंपॉर्टेंट। बाय R1 प्लस R, ऐसा कर दीजिए, R1 implies R1 प्लस R2 प्लस R। यानी R1 को हम लोग चेंज कर रहे हैं, चलो तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है, और डायरेक्ट लिखेंगे। तो ये देखिए ऐसा हो जाएगा, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। रिमेनिंग कॉपी कर दीजिए, 2B 2C B minus C minus A 2C 2B C minus A minus B। आपको अगर कंफ्यूजन है चल रही है कहाँ से आ रहा है, तो आप देख लीजिए, आपका फर्स्ट रो A minus B minus C है, प्लस 2B है, प्लस 2C है। ये देखिए माइनस B प्लस 2B इज प्लस B माइनस C प्लस 2C इज प्लस C। देखिए आया क्या। सिमिलरली इन तीनों को ऐड करके भी देखिए वही आएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस। ये देखिए चिल्ड्रन दिखा रहे हैं आपको, 2A प्लस B माइनस C माइनस A प्लस 2C। 2A माइनस A क्या हो गया चिल्ड्रन, A
प्लस बी, और ये देखिए माइनस सी प्लस 2c प्लस सी। इन तीनों को भी ऐड कीजिए, वही आएगा। देखिए ना, बीच में प्लस, यहाँ पे प्लस 2a माइनस है a, 2b माइनस b, b प्लस सेम आएगा। समझ में आ रहा? यानी आपका R1, ये लाइन पूरा R1 है चिल्ड्रन, ये R1 R2 R3। पिछले लेक्चर को याद कीजिए आप, R1 की जगह आपको लिखना है R1 प्लस R2 प्लस R3, लिख दिया आपने। और अब कॉमन ले लीजिए फर्स्ट रो से, ये हो गया 1 1 1, ये देखिए 2b 2c, b माइनस c माइनस a 2c, 2b c माइनस a माइनस b, टेकिंग a प्लस b प्लस c कॉमन। लिखना नहीं, वो डायरेक्ट कॉमन हो गया, अंडरस्टूड है। और जैसे ही 1 1 1 आ गया, लास्ट लेक्चर में याद कीजिए बिफोर योर वेकेशन हम लोगों ने उसको सॉल्व किया था। अगर 1 1 1 रो में आता है तो आप लिखते हैं c1 माइनस c2 c2 माइनस c3, और अगर कॉलम में आता है तो r1 माइनस r2 r2 माइनस r3। देखो ना, ऐसा होगा ना, ये c1 है, c2 है, c3 है, c1 माइनस c2 c2 माइनस c3। हियर आई राइट बाय c1 को क्या करेंगे चिल्ड्रन, c1 माइनस c2, एंड c2 को क्या लिखेंगे, c2 माइनस c3। C1 is C1 minus C2, C2 is C2 minus C3. So this will be A plus B plus C, 1 minus 1 0, 2B minus B minus C minus A, 2C minus 2C 0, 1 minus 1 0, B minus C minus A minus 2B, 2C minus C minus A minus B. And here it is 1 2b c minus a minus b। देख लीजिए, फर्स्ट कॉलम माइनस सेकंड कॉलम माइनस थर्ड कॉलम, 2 zeros आ गया है। बट अभी एक्सपेंड नहीं करना है, अभी आपको सिंप्लीफाई करना है, कॉमन लेना है, फिर एक्सपेंड करना। नाउ दिस विल बी a plus b plus c 0, ब्रैकेट ओपन कीजिए। देखिए 2b माइनस b b हो जाएगा, प्लस c प्लस a 0, यहाँ ये 0, b माइनस 2b माइनस b माइनस c माइनस a, दिस इज c प्लस a प्लस b, और यहाँ पे 1 2b c माइनस a माइनस b। वॉकिंग नहीं, नाउ इट इज a प्लस b प्लस c, इसको सिस्टमेटिक कर दीजिए, b प्लस c प्लस a को a प्लस b प्लस c 0, माइनस कॉमन कीजिए, a प्लस b प्लस c, here also you write a प्लस b प्लस c, 1 2b c माइनस a माइनस b। ठीक है, और अब देखिए कॉमन हो रहा है क्या, यस, फर्स्ट कॉलम से a प्लस b प्लस c हो रहा है, क्योंकि दिस इंटू 0 0 ही होता है, और यहाँ से भी हो रहा है। फर्स्ट कॉलम से a प्लस b प्लस c, सेकेंड कॉलम से भी a प्लस b प्लस c, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, होल स्क्वायर, और बाहर आने के बाद क्या हो जाएगा, रेज टू 3 होल क्यूब हो जाएगा चिल्ड्रन। आई राइट हियर दिस इक्वल टू a plus b plus c the whole cube, am I right? This is 0 1 0, this is 0 minus 1 1, this is 1 2b c minus a minus b। फर्स्ट कॉलम से a plus b plus c कॉमन, सेकेंड कॉलम से भी a plus b plus c कॉमन, देयरफॉर यहाँ देखिए 0 1 0, 0 minus 1 1 एंड डेट। और अब एक्सपेंड कर दीजिए, रो में भी एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉलम को भी कर सकते हैं आप, दोनों तरफ डबल 0 है। आई एम डूइंग टेकिंग दिस चिल्ड्रन, ये ले रहे हैं हम, ये देखिए दोनों कैंसिल होता है, ऐसा समझने के लिए। व्हाट इज रिमेनिंग, 1 into 1 1 माइनस 0 into समथिंग 0, और बाद में 1 into 1 1, 1 से मल्टीप्लाई करो, सेम रहेगा, एंड दिस इक्वल टू RHS सेंस टू। यहाँ के बाद चिल्ड्रन वहाँ लास्ट में
होल क्यूब कैसे हो गया? पहले से a प्लस बी प्लस सी है, देखिए यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कॉमन, यहाँ से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन, तो 1 2 3 इट बिकम्स पावर 3. So the main point is to convert any column, any row, all elements equal. That is very important. एक बार वो इक्वल हो गया, कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो गया 1 1 1 आ जाएगा. Either you will get in column 1 1 1 or you will get in row 1 1 1. If it is in column 1 1 1, it means R1 minus R2, R2 minus R3. If it is in row 1 1 1, it means C1 minus C2, C2 minus C3, as I have written. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए. क्वेश्चन नंबर 12. डिटरमिनेंट x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, क्या हो गया? y वर टॉकिंग, और RHS is x y z, x minus y, y minus z, z minus x. फर्स्ट रो में चिल्ड्रन x y z, सेकंड में x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, एंड इन द थर्ड रो x क्यूब y क्यूब z क्यूब. RHS x y z, x minus y into y minus z into z minus x. चलो राइट फर्स्ट द लेफ्ट हैंड साइड, कॉपी कीजिए लेफ्ट हैंड साइड को. ये देखिए LHS x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, x क्यूब y क्यूब z क्यूब. क्या कहा है मैंने? किसी भी एक कॉलम को इक्वल कीजिए या 1 1 1 में कन्वर्ट कीजिए. ठीक है? देखिए चिल्ड्रन फर्स्ट कॉलम को देखिए, बोर्ड पे x कॉमन है क्या? फर्स्ट कॉलम में बोर्ड पे कॉमन हो रहा है x, हो रहा है. सेकंड कॉलम में y कॉमन है, थर्ड में z कॉमन है. फर्स्ट रो में क्या आ जाएगा? 1 1 1, और 1 1 1 आ गया तो सॉल्व हो जाएगा. पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे चिल्ड्रन डायरेक्ट हम लिखेंगे x y z, ये हो गया 1 x x स्क्वायर, 1 y y स्क्वायर, 1 z z स्क्वायर. मैंने क्या कहा चिल्ड्रन? कॉमन कॉलम से भी होता है, रो से भी होता है. और x y z देखिए RHS में है. अब ऐसा ऑपरेट होगा चिल्ड्रन, C1 minus C2, C2 minus C3. So we write here by C1 को C1 minus C2 and C2 को C2 minus C3. So this is x y z 0, x minus y, x square minus y, 0, y minus z, y square minus z, 1 z z square. आगे ऐड 2 zeros. It doesn't mean that आप एक्सपेंड करेंगे. चिल्ड्रन एक्सपेंशन से पहले कॉमन लेना जरूरी है, बिकॉज कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाता है. So after this x y z 0, x minus y, a plus b a minus b यूज कीजिए. ये देखो सिमिलरली 0 y minus z, y plus z, y minus z, 1 z z square. Am I right? Ask the question if any last time. बोलिए आप माइंड में आ रहा है आपको नया, तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम. अब कॉमन लीजिए चिल्ड्रन, देखिए इधर x minus y देखिए यहाँ, और 0 में भी रहता है, 0 into something 0. ये देखिए y minus z. So we take common here. फर्स्ट कॉलम से x minus y, सेकंड कॉलम से y minus z. What is remaining? 0 1 x plus y, 0 1 y plus z, 1 z z square. ये देखिए
और देखिए सबसे अच्छी बात यह है चिल्ड्रन के तीनों भी टर्म आरएचएस में है। देखिए एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस, राइट। अब आप एक्सपेंड कीजिए, नाउ यू शुड एक्सपेंड एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। ये देखिए चिल्ड्रन 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, ये एक्सपेंड होगा 1। यहाँ पे हम कट करके दिखा रहे हैं, एग्जाम में क्या ऐसा कट नहीं करना आप। ये देखिए ये मेथड है, जिस एलिमेंट को एक्सपेंड करोगे सामने का रो कॉलम कैंसिल होता है और ऐसा एक्सपेंड होता है। ये देखिए, so this will be 1 into y plus z means y plus z, x plus y into 1 means x plus y, और ये y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा ना, और 1 से मल्टीप्लाई करो, इट रिमेन द सेम, x minus y, y minus z, z minus x equal to RHS। मेन उसकी टेक्निक को आपको समझना है चिल्ड्रन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार टेक्निक आप समझ जाएंगे, यू कैन सॉल्व इट। देखा बराबर है, मैंने क्वेश्चन लिखा, मैं कोई पूछ रहा हूं ना, छोड़ने क्या बात है, आप आंसर दीजिए। कभी-कभी क्या होता है, वो लाइन अच्छा नहीं लगता, आपको छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना। आपने सिर्फ पूछा है ना, पूछ तो सकते हैं, आप पूछते हैं, वो आपका आंसर होना चाहिए अच्छा, पोलाइट में सर आइए, गुस्से में बात कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन हमने ये थोड़ी बोला कि आपने नहीं लिखा है, मैंने पूछा लिखा है क्या, क्वेश्चन मार्क, ऐसा क्वेश्चन था, तो आंसर शुड बी इन दैट वे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिक है चिल्ड्रन, 13 नंबर। कई बार एग्जाम में आया है 1 प्लस ए 1 1, चलो राइट डाउन 1 1 प्लस बी 1, 1 1 1 प्लस सी ए बी सी, 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। और कभी कभी ऐसा भी पूछते हैं चिल्ड्रन, ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, 2 RHS है। 13 नंबर क्वेश्चन आ गया है, 1 प्लस ए 1 1 फर्स्ट कॉलम, 1 1 प्लस बी 1 सेकंड कॉलम, 1 1 1 प्लस सी थर्ड कॉलम। RHS राइट डाउन ए बी सी, ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, या ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। और लास्ट वाला कहाँ से आ रहा है पता है, मल्टीप्लाई हो गया हो, ए बी सी से मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रैकेट को तो वही आ जाएगा। स्टार्ट करें, थोड़ा सा स्टार्टिंग में केयर लेना है, उसके बाद नो प्रॉब्लम। LHS डिटरमिनेंट की साइन 1 प्लस ए 1 1, 1 1 प्लस बी 1, 1 1 1 प्लस सी है। अभी ये सोचना है कि वो सेम कैसे आएगा। चिल्ड्रन अगर आप ऐड करोगे तो सेम नहीं आ रहा है। देखिए अगर आप कॉलम को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस ए 3 प्लस बी 3 प्लस सी। अगर रो को ऐड करेंगे तो भी वही आ जाएगा। और हमको लाना इक्वल है, जब तक इक्वल होगा नहीं कॉमन ले नहीं सकते, 1 1 1 आ नहीं सकता है, 2 zeros आ नहीं सकता, तो आएगा कैसे? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। बराबर है ना? देखिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये चिल्ड्रन के ABC से डिवाइड और मल्टीप्लाई पिछले लेक्चर में याद कीजिए, ऐसा हमने आपको बताया था। फर्स्ट यू सी दिस 2 स्टेप, उसके बाद नो डिफिकल्टी। कैन बी राइट, आई थिंक वी कैन। ये दोनों चिल्ड्रन कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, 1 into this remain the same। ये पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, ABC as it is। अब चिल्ड्रन देखिए 1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई कीजिए, या तो रो में या कॉलम में, आपकी चॉइस। ये क्या है, 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी। तो 1 अपॉन ए से हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए अपॉन ए 1 अपॉन ए 1 अपॉन ए। 1 अपॉन बी से इसमें मल्टीप्लाई 1 अपॉन बी 1 प्लस बी अपॉन बी 1 अपॉन बी। 1 अपॉन सी से यहाँ मल्टीप्लाई 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी 1 प्लस सी अपॉन सी। आप बोलेंगे सर रो में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्या? रो में भी कर सकते हैं आप। 1 अपॉन ए से फर्स्ट रो में, 1 अपॉन बी से सेकेंड रो में, 1 अपॉन सी से थर्ड रो।
either you multiply in row or you multiply in column. Children, ये point आप समझ लीजिए. देखिए इधर ये जो 1 upon ABC है ना, this is nothing but 1 upon A into 1 upon B into 1 upon C. ऐसा है. तो हमने 1 upon A से फर्स्ट कॉलम में, 1 upon B सेकंड कॉलम, 1 upon C थर्ड कॉलम, ऐसा मल्टीप्लाई किया. और अब ए बी सी एज इट इज. चिल्ड्रन इसको सेपरेट कर दीजिए. ये हो गया 1 अपॉन ए प्लस 1, ये दोनों एज इट इज. 1 अपॉन बी, इसको भी सेपरेट कीजिए. 1 अपॉन बी प्लस 1, लास्ट एज इट इज. 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी सेपरेट कीजिए. 1 अपॉन सी प्लस 1, ये देखिए. ठीक है. और अब चिल्ड्रन अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें, C1, C2, C3 सेम आ जाएगा. ऐड करके देखिए, दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन तीनों को ऐड कीजिए वही आएगा. इन तीनों को ऐड कीजिए वही आएगा. आप बोलेंगे सर ये क्यों नहीं ऐड कर रहे आप? चिल्ड्रन इसमें खाली A है, here only B है, there only C है, सेम नहीं आएगा. तो what we do now, we add all the columns C1 plus C2 plus C3. See what I am telling? By C1 को लिखेंगे चिल्ड्रन C1 plus C2 plus C3. क्या जाएगी? C1 अब C1 नहीं रहेगा, उसमें C2 C3 ऐड हो जाएंगे. और डायरेक्ट सिस्टमेटिक लिखिए चिल्ड्रन. नो नीड टू वेस्ट द टाइम. 1 plus 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C. Next 1 plus 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C. Next 1 plus 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C. देख लीजिए. C1 में C2 C3 ऐड कर दीजिए और सिस्टमेटिक लिख दीजिए. क्या सिस्टमेटिक आ रहा है उसको देखकर. रिमेनिंग कॉपी. ट्रिकी क्वेश्चन 6 मार्क्स अगेन. रिमेनिंग दोनों भी कॉलम्स आप कॉपी कीजिए. ओके. और अब चिल्ड्रन कॉमन ले सकते हैं आप. ये देखिए सेम हो गया है, तीनों भी सेम है. टेक कॉमन, बाहर आ जाएगा. आफ्टर टेकिंग कॉमन, दिस इज 1 1 1 1 अपॉन B, 1 अपॉन B प्लस 1 1 अपॉन B, 1 अपॉन C, 1 अपॉन C, 1 अपॉन C प्लस 1. ये देखिए आरएचएस में जो लाना है वो ऑलरेडी आ चुका है. इसका मतलब डिटरमिनेंट सॉल्व होके 1 आएगा. अब आपको दो जीरोस करना है चिल्ड्रन. ये देखिए ऐसा होगा R1 minus R2, R2 minus R3 बाय R1 को आप लिखेंगे R1 minus R2 एंड R2 को आप लिखेंगे R2 minus R3. ये देखिए एरो भी लगाइए चिल्ड्रन ताकि डिफिकल्टी नहीं हो समझने में. This is A B C 1 plus 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C. और ये डिटरमिनेंट R1 minus R2 children. 1 minus 1 0. This minus 1 that is 0. 1 minus 1 0. 1 upon B cancel 1. This is minus 1. और ये as it is ये रहेगी. चेक कर लीजिए चिल्ड्रन आप. See this line. देखो इधर 1 minus 1 0. This minus this ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. minus 1 that is also 0. 1 minus 1 0. This minus this cancel over 1 that is minus 1 then as it is. ठीक है ना. और अब आप एक्सपेंड कर सकते हैं चिल्ड्रन. Now this will be A B C 1 plus 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C into 1. ये देखिए चिल्ड्रन हम ऐसे लिया है 0 0 1. ये वाला एक्सपेंड कर रहे हैं. ये दोनों आपका कैंसिल हो गया. देखिए ऐसा -1 into -1 is 1, 1 into 0 0. हमने ये साइड से एक्सपेंड किया है. ये देखिए 0 into something 0, 0 into something 0 into 1.
सामने का रो कॉलम कैंसिल, दिस इज रिमेनिंग -1 into -1 1 1 -0 और 1 -0 1 ही होता है। 1 into this as it is, ये देखिए तो सेम आ गया चिल्ड्रन। ये पहला आपका आरएचएस है, फर्स्ट दो दिया है ना क्वेश्चन। अगर सेकंड आता है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई, देखिए ऐसा, दिस इज ए बी सी, ए कैंसिल बी सी, बी कैंसिल ए सी या सी ए, सी लिख दीजिए, सी कैंसिल ए बी। एक लाइन और लिखिए इसको, ए बी सी, फर्स्ट ए बी, देन बी सी, देन सी ए, अनदर RHS, because there are two different terms on the right side. Starting important है, how to convert all elements, वो बहुत important। एक बार वो बना दिया ना, फिर बाद के कैलकुलेशन सेम है। एक बार 1 1 1 आ गया मींस यू कैन सॉल्व इजीली। रो में आया तो C1 - C2, C2 - C3, कॉलम में आ गया तो R1 - R2, R2 - R। आपको जब रिवीजन करना है तो यू शुड टेक केयर ऑन दैट लाइन चिल्ड्रन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो आप नहीं करेंगे तो यू विल नॉट गेट द रिजल्ट इजीली, आएगा ही नहीं रिजल्ट। चलिए फास्ट लिखिए, मोबाइल रख दीजिए ना सर, मोबाइल पे क्या कर रहे हैं? मुझे बोला इधर रख लिया, मत लिया तो मोबाइल क्यों मगर यूज कर रहे हैं? नहीं आपने स्क्रीनशॉट लिया था? नहीं ना, नहीं छोड़ो ना, कॉल सब आते रहते हैं, थोड़ा प्राइम मिनिस्टर भी रहते लेक्चर में तो वो भी नहीं उठाते, ऐसा कुछ नहीं है, लेक्चर का सिर्फ मीटिंग रख दीजिए, वो सब आता रहता, मुझे भी आ रहा है, 3 टाइम्स उस पर वाइब्रेट हुआ है, सब आते देखिए, सबको सॉरी बोलेंगे, उसमें क्या है कि नहीं? सीटी की डेट और बढ़ा दिया, जुलाई में कर दिया, एग्जाम लेते कि नहीं लेते, क्या तैयारी तो पूरी हो गई है कंप्लीट, वो क्यों डेट बढ़ा रहे बार बार? इसीलिए हम लोग भी लूज हो गए, डेट इसलिए बार बार बढ़ा रहे हैं कि अदर जो बोर्ड के लोग हैं CBSE ICSE उनको भी देखना पड़ता है ना, उनके एग्जामिनेशन की डेट आगे बढ़े हैं, वो जब तक फ्री नहीं होंगे कैसे आप करोगे, इसलिए बढ़ाया। और कोई रीज़न नहीं, रिजल्ट फर्स्ट देंगे, जितना रिजल्ट में टाइम लगाते हैं उसका 1/4 कर दिया है, रिजल्ट पैसे टाइम पे ही दे देंगे, तो ऑनलाइन है, लेकिन इसलिए बढ़ाना पड़ता है और कोई रीज़न नहीं है, तैयारी पूरी हो चुकी है, लास्ट स्टेज में चल रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं जरा दो अलग हट कर क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट से डिटर्मिनेंट प्रूफ करना है। सर जी आप फिर मोबाइल यूज कर रहे हैं, बैग में डाला था ना, कितने मोबाइल है आपके पास सर बताइए जरा, ये 3 के बाद फिर सर आ रहे हैं, नहीं ये मोबाइल दीजिए, और एक मोबाइल इस पर रखा था आपने, और किधर है वही निकाल दिया, आपको बहुत अजीब बात है, ध्यान रख दीजिए, देखिए रख दिया है मैंने, ठीक है। और सब लोग जितने कॉल वॉल आएंगे ना सबको बोलना अफसर ने हमको यूज करने नहीं दिया, अफसर की तरफ से सॉरी बोलना, ऐसा बोलना, ठीक है। क्या है मैं यूज कर रहा हूँ क्या मोबाइल, सिर्फ मुझे थोड़ा सा देखता हूँ मैं, ऐसा तो नहीं कि उधर बोर्ड से या सिटी से मुंबई से फोन तो नहीं आ रहा है, या JEE 3 फोन अभी बहुत हॉरेबल है, तीनों की कभी भी मैसेज कभी भी मेल आ रहा है, तो वो उतना सा देखता हूँ, भी नहीं दिखा तो छोड़ दिया मैंने, ठीक है। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर? 14। स्टार्ट रखिए, A² B² C² लिखिए क्वेश्चन, ABC BC CA AB। चिल्ड्रन बगैर मोबाइल के भी रहने की आदत डालिए, जो आप बोलेंगे सर हमको आदत है एग्जाम में बगैर मोबाइल के मैं पेपर नहीं लिख सकता, तो मेरे को लगता है वो अलाउ करेंगे क्या वो एग्जाम में? 1 1 1 A² B² C² AQ BQ एंड CQ। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट को 0 मार्क मिल जाता है,
अब बोले क्यों सर 0 क्यों मिल जाता है? वो दोनों साइड से प्रूफ सॉल्व कर देते हैं। पहले LHS से सॉल्व करते कुछ आता, फिर RHS से करते सेम आ जाता, लिखते LHS इक्वल टू RHS। नो, इट इज द रॉन्ग मेथड। आइदर यू स्टार्ट फ्रॉम LHS or you start from RHS, convert into other side। डिटरमिनेंट को डिटरमिनेंट नहीं प्रूफ करना है, एक्सपेंड नहीं कर सकते आप। याद रखिएगा, क्वेश्चन इसलिए स्टार बनाया है, ठीक है। LHS से चलेंगे और डायरेक्ट RHS आपको लाना होगा। चलिए, राइट डाउन द लेफ्ट हैंड साइड। Another very important question, a square b square c square abc bc ca ab। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। ये देखिए, RHS को एक बार देख लीजिए। जैसे हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो देख लेते हैं ना, तो आप वीक में 3 बार जाते हो, देखते हैं ना रास्ते में सही चल रहे हैं कि सड़कों की तरफ ले जा रहे हैं, एक खुद अपन गलत जा रहे हैं। तो यहाँ भी प्रूफ करने से पहले RHS देख लीजिए। देखा आपने क्या है RHS में? 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ये बीच वाला जो है आपके पास, ये देखिए, ये है इधर, और ये क्या है? a क्यूब b क्यूब c क्यूब। ये नहीं है आपके पास, दिख रहा है आपको कुछ? क्या करना पड़ेगा पता है आपको? abc से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा लिखेंगे, देखिए 1 अपॉन abc। बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए। ये देखिए, पहले abc से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया है। आप एंजॉय करेंगे इस प्रॉब्लम में, हमने इसीलिए चेंज कर दिया प्रॉब्लम का नेचर। लिखने में कोई इशू है आपको? नहीं है। अब a से आप मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट रो में कीजिए इस बार। a से किस में करेंगे? रो में, ऐसा मल्टीप्लाई। हाँ बोलो, कर सकते, बोला ना मैंने, आइदर LHS to RHS और RHS to LHS, नॉट फ्रॉम बोथ, बिल्कुल कर सकते। तो ये देखिए, लेकिन RHS में आप क्या सोच रहे होंगे? C1 माइनस C2। इधर देखिए, हेलो, आप सोच रहे होंगे C1 माइनस C2 C2 माइनस C3। वैसा नहीं करना, एक्सपेंड नहीं कर सकते आप, 2 0 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये देखिए, A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई ये ले रहे हैं ना चिल्ड्रन, ये तो बाहर ही है आपका। A से मल्टीप्लाई a क्यूब a स्क्वायर abc, b से इसमें सेकंड में b क्यूब b स्क्वायर abc, c से थर्ड में एरो लगाइए, एग्जाम में नॉट रिक्वायर्ड। ये देखिए, रो में किया है, कॉलम में क्यों नहीं किया? कॉलम अलग हो जाएगा ना, बिल्कुल। और आप abc कॉमन कर लीजिए, हो रहा है क्या abc कॉमन? ये देखिए क्या हो गया? a क्यूब b क्यूब c क्यूब, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, 1 1 1, और इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए। व्हाट इज रिमेनिंग चिल्ड्रन? a क्यूब b क्यूब c क्यूब, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। सब लोग एलिमेंट्स आ गए हैं, यानी जगह बराबर नहीं है। करते हैं, देखो चिल्ड्रन, रोज और कॉलम्स को हम इंटरचेंज कर देंगे, रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। यहां लिखेंगे बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। आपको पता है ना, इफ वी इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स, वैल्यू रिमेन्स अनचेंज। चेंज करो चिल्ड्रन, देखो इधर, ये आपका फर्स्ट रो है, एक कॉलम में आ जाएगा, ये सेकंड रो है, कॉलम में आ जाएगा, ये थर्ड रो है, कॉलम में आ जाएगा। एम आई राइट? प्रॉपर्टी पढ़ाया था ना मैंने आपको, इफ फॉर एनी डिटरमिनेंट इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, नो चेंज इन वैल्यू। ठीक है, अभी भी रिजल्ट नहीं आया, आएगा, पर आराम से आता है। अब देखिए क्या प्रॉब्लम हो गया, ये बीच वाला सही है, देखिए ये अपनी जगह पे आ गया है, खाली ये दोनों का प्रॉब्लम है, इसको यहाँ होना चाहिए और इसको यहाँ होना चाहिए। हाँ, बाय R1 into R3 into R1 प्रॉपर्टी याद है? in any determinant if we interchange any two rows or two columns it changes in sign only। याद कीजिए, माइनस साइन लगाया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस डिटरमिनेंट 1 1 1 फर्स्ट हो गया, a क्यूब b क्यूब c क्यूब नीचे आ गया,
और मिडिल नो चेंज। देख लीजिए अगर RHS से मैच होता है तो लिखिए इक्वल टू RHS, कभी कभी मैच नहीं होता फिर भी लिख देते हैं इक्वल टू RHS। RHS से भी आ सकता है लेकिन एक्सपेंड नहीं कर सकते। आंसर तो आ जाएगा, मार्क 0 आएगा। बराबर लिखिए। राइट फास्ट एक क्वेश्चन और करना है। तब तक मैं लिख रहा हूँ 15, यहाँ पे स्टार होगा x a y b z c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 1 1 1 x y z a b c b c c a a b। आप भी यूज कर लो मोबाइल से, आपको है यूज कर दो। उसमें जैमर लगवा देता हूँ, सबको बोलते हैं जैमर लगा दो क्लास में, वो कुछ काम का नहीं है, यूज होना चाहिए। टीचर्स का जैम नहीं होने का बच्चों को हो जाए। चलो फास्ट लिखो LHS और यूज करते हैं मोबाइल, गलत बात है। x a y b, चलो लिखो LHS। और इसीलिए डिले होता है लिखने में क्योंकि आपका पूरा अटेंशन तो मोबाइल पे है, तो आप लिखने में स्लो हो जाते हैं। नहीं होना चाहिए ना ऐसा, नहीं छोड़ देने का और पहले मैसेज दे दो लेक्चर में, ऐसा क्या हो गया आप एकदम कितनी बार ऑनलाइन करते, क्या करते नहीं क्या लोकेशन। चलो चलो देखो सर आ जाएंगे फिजिक्स की क्लास से, प्लीज राइट डाउन x a y b z c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 1 1 1। ठीक है, यहाँ भी चिल्ड्रन वैसे ही करना होगा आपको। ABC से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आधी बात समझ में? ABC से आपको क्या करना होगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई। ऐसा लिखिए ABC into 1 upon ABC। This is x a। ये लाइन पे केयर लीजिए चिल्ड्रन, कब पहले डिवाइड कब सेकेंड डिवाइड, डोंट टेक इट लाइटली। देखने में अच्छा लगता है बट आपको जब लिखना होगा एट दैट टाइम यू शुड टेक केयर। एंड नाउ दिस इज ABC। अभी तक देखो चिल्ड्रन 1 upon a से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करो, a कैंसिल हो गया x, a 1 upon a। देखो ठीक से सेकंड कॉलम 1 अपॉन b, यहां देखो ये हो गया y b 1 अपॉन b। थर्ड कॉलम में 1 अपॉन c से z c 1 अपॉन c। एम आई राइट? 1 अपॉन a से फर्स्ट कॉलम, 1 अपॉन b से सेकंड कॉलम, 1 अपॉन c से थर्ड कॉलम। अब क्या रिजल्ट आ गया है देखो, फर्स्ट और सेकंड कॉलम मैच हो रहा है क्या, जरा देखते चलो ना इधर। ये देखो मैच हो गया, ये भी मैच हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे पता है आपको, कि पूरे ABC से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा x y z एज इट इज। ये देखो ABC into 1 upon a कैंसिल BC, ABC 1 upon b कैंसिल, AC को C लिख दो जैसे क्वेश्चन में है, C कैंसिल AB। RHS की तरफ अच्छे से देखो, अच्छी राइटिंग में लिखो RHS and students 2 marks। प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, वैसे नहीं चलेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो सब समझ में आता है। टेक्निकल आपको समझना है। अभी आप एक क्वेश्चन आपके माइंड में हो सकता है, सर 1 अपॉन a से आप इधर क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, चिल्ड्रन सब बेकार हो जाएगा, इसमें a भी हो जाएगा, इसमें AC हो जाएगा, सब कुछ और आ जाएगा। यू हैव टू सी वेदर वी मल्टीप्लाई इन रो और वी मल्टीप्लाई इन कॉलम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आप बोलेंगे सर पूरे ABC से आप इसमें क्यों मल्टीप्लाई कर दिया इस बार, क्योंकि चिल्ड्रन ये रो और ये रो आ गया है, सिर्फ ये नहीं आ रहा है, इसको चेंज करना है, इसलिए पूरे ABC से इसमें मल्टीप्लाई।
आप सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हो, इन एनी वन कॉलम इन एनी वन रो भी कर सकते हो, मैटर इज द सेम। वन अपॉन ए इंटू मल्टीप्लाई किया तो बात तो बराबर ही है ना, वन अपॉन ए से मल्टीप्लाई होगा ना, डिवाइड थोड़े होगा, ये वन अपॉन ए है ना, ये वन अपॉन ए इंटू दिस वन अपॉन बी वन अपॉन सी, इट इज लाइक दिस।